or welcome back to my channel. I am Palak, a final year BTech Computer Science Engineering at SRM University AP. So आज मैं Q&A वीडियो रिकॉर्ड करने वाली हूँ. So after I put a lot of videos and shorts regarding SRM AP, my whole comment section is flooded with so many queries. And I'm very happy कि मैं आपके सारे questions के answers आज देने वाली हूँ. So now let's start. So guys, today my friend is going to be voice behind the camera. तो आपने जितने भी क्वेश्चंस वगैरह कमेंट में डाल रखे हैं तो मेरी दोस्त वो रीड आउट करेगी एंड आई विल बी आंसरिंग टू ऑल योर क्वेरीज. Starting off with something a lot of people are curious about, can we visit SRM AP for a campus tour with a family? Yes, you can definitely visit SRM University AP with your parents. जब मैं भी फर्स्ट ईयर में आई थी मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ आई थी because parents are also very interested to know how the university looks and how are people over here, right? So it is definitely allowed. आप अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं and you can explore the campus. Another one, how is the campus life overall? Would you say it's lived to expectation? So basically the campus life is very good. Firstly क्या है कि जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे you need to make sure that you have a very good friend circle. जब आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छे होते हैं ना तो आप बहुत इन्जॉय करोगे, ठीक है. और दूसरा बात ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्सिटी के लोग हैं. सो जस्ट ट्राई एंड मेक श्योर कि आप सब लोगों से बात करें एंड बहुत ज़्यादा फैमिलैरिटी करें थोड़े से. और जो हमारे कॉलेज में फेस्ट वगैरह भी बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं. कभी क्लब हो गया, कभी कुछ कॉम्पिटिशन्स हो गए. तो अगर आप ये सब में पार्टिसिपेट करोगे ना देन दैट विल बी अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस. सो आई डेफिनेटली थिंक कि कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पर. बट देर आर टाइम्स जब थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है बिकॉज यू हैव ऑलवेज क्लासेस हो जाता है एंड देर आर टाइम्स व्हेन यू हैव टू डू योर असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग. कभी कभी बोरिंग ज़रूर होगा लेकिन अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स अच्छे हैं तो आई थिंक इट विल बी होलसम. Okay, then someone also asked how far is the college from the city? So it is super remote or pretty accessible? So basically talking about how far is विजयवाड़ा. So basically यहाँ का मार्केट विजयवाड़ा है, ठीक है. तो वहाँ से when you come from a railway station, first you have to come to Mangalgiri and then from Mangalgiri you have to come to SRM. Now there also is another way is that you directly take a cab or an auto from विजयवाड़ा to SRM, ठीक है. तो बेसिकली अगर हम मंगलगिरी से जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 45 to 1 hour आपको लगेगा आराम से विजयवाड़ा पहुँचने में. एंड या देर आर लॉट ऑफ व्हीकल्स लाइक ऑटो हो गया, ऊबर हो गया एंड ऑल दिस. सो इट इज़ वेरी एक्सेसिबल बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट ऑलवेज गो टू द मार्केट एरिया. Okay, oh fun one. Do you guys have a prom night at SRM AP? That sounds like a movie movement. That's so funny, but no, we do not have prom night at SRM University AP, but definitely we have fest. Now coming to the fest, oh my god, fests are so good here. There are a lot of artists that come here and you will feel like you are at a concert. So we don't have prom night, but we definitely have fest that is very memorable and amazing. Okay, another question. Is there an NCC on campus like any military programs? You would be sad to hear, but we do not have NCC at our campus. There are lots of clubs that you can take part in. And in that we also have one club that is NSS. So you can take part in NSS or any other club activities that you want. Now coming to club, we have art club, dance club, music club and many more. So if you are interested in any of the club, you can definitely take part in them. A lot of incoming students are asking when does the new session start and when is the orientation? So basically I'm not very much clear about when your session is starting, but हमारा classes 28th of July से शुरू हो रहा है. So I'm just assuming कि आपका भी 28 जुलाई से ही शुरू होगा. And coming to orientation, so basically first years have 10 days of orientation जिसमें वो आपको make sure करते हैं कि that you are very familiar with SRM environment. तो आपको वो सब चीज़ें बताएंगे from classes, breaks, schedules, from campus fest to everything. So they make sure that you are very comfortable at SRM University AP. Okay, next question. Also, when did your first year start and was it in August? So मेरा तभी कोविड ख़त्म ही हुआ था तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लेट मेरे क्लासेस शुरू हुए. तो मेरा क्लास शुरू हुआ था अक्टूबर 10th को. सो या अगस्त में तो नहीं था बट अक्टूबर में था. बट आई थिंक आप लोग का शायद अगस्त तक तो शुरू हो ही जाएगा. Okay, someone also wants hostel advice. Which hostel and room is the most recommended while booking? And any secret tips? सो इफ़ यू आर समवन जिसको गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती तो आपको AC लेना ही पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है. स्पेशली मई और जून का जो महीना है उसमें तो ओ माय गॉड इट इज़ वेरी हॉट, ठीक है.
तो अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो आप नॉन AC ले लो, अगर आप नहीं एडजस्ट कर सकते हो तो आप AC ले लो। और मैं यहाँ पर आपको सारे रूम के टाइप्स मेंशन कर दूँगी कि कौन से रूम टाइप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड ऑल्सो एक प्रो टिप जो मैं देना चाहूँगी, जो मैंने अप्लाई नहीं किया था, कि फर्स्ट ईयर में आप ट्राई करें कि अगर आप ज़्यादा शेयरिंग के रूम में रहना आपको पड़े ना, तो यू जस्ट लिव देयर, बिकॉज उसमें आपके पैसे पहले बचते हैं थोड़े से, और तभी आप नया एक्सपीरियंस करते हो, यू आर रेडी टू एक्सप्लोर एंड एडजस्ट, तो आपके पैसे थोड़े से बचेंगे। एंड उसके बाद जैसे जैसे आपके सेमेस्टर ईयर बढ़ते हैं, आपको थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, सो आफ्टर दैट यू कैन ऑप्ट फॉर 2 शेयरिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं होगी या ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं होगा पढ़ाई का, तो इसलिए आप 4 शेयरिंग भी लेंगे तो इट इज़ बेटर। And is living in hostel compulsory, or can a student rent place outside in groups of 3 or 4? So if you are an international student, brother, it is very important कि आपको यहाँ रहना ही पड़ेगा, ठीक है, you do not have any option. But अगर आप नेशनल स्टूडेंट हो, you can not opt for hostels as well. But मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप हॉस्टल में ही रहें। पहली बात, क्योंकि मार्केट और जो एरिया है जैसे विजयवाड़ा, गुंटूर वगैरह है, वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो वो कमिंग एंड गोइंग बैक एंड फोर्थ इज़ लाइक वेरी हेक्टिक, राइट। एंड आप अभी आए होंगे, यू आर नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो इट्स बेटर कि आप हॉस्टल ले और एक बार हॉस्टल लाइफ भी एक्सप्लोर करें एंड देन डिसाइड वाइजली कि आपको हॉस्टल में रहना है या बाहर रहना है। Okay, here's a relatable one. I am a pure vegetarian, speak Sindhi. Will this campus be suitable for me? So yeah, we have 2 mess. यहाँ पर सारे टाइप से खाना बनता है, वेजिटेरियन भी, नॉन वेजिटेरियन भी, तो आपको दिक्कत तो डेफिनेटली नहीं होगा, बट देयर आर टाइम्स व्हेन यू विल नॉट लाइक द फूड, राइट, सो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, बट या प्योर वेजिटेरियन के लिए वेजिटेरियन खाना यहाँ ज़रूर मिलता है। Okay, also, does the CSE departments have North Indian students? Some people are wondering about diversity. That's a very pretty good question, but yes, यहाँ पर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स भी रहते हैं। इनफैक्ट मेरे ही बहुत सारे दोस्त हैं जो नॉर्थ इंडिया से हैं, और CSE लाइक नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली CSE, बिकॉज CSE में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो नॉर्थ इंडियंस भी डेफिनेटली होंगे, बट इन पर्टिकुलर एट कैंपस या वी हैव नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स इज वेल, एंड इफ कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया यू कैन डेफिनेटली फाइंड योर फेलो फ्रेंड्स। One asked, if I chose CSE AIML and I have a 75%, will I get a scholarship? सो आई एम एज्यूमिंग कि आप पूछना चाह रहे हो कि आपका 75% स्कॉलरशिप है और आपको AIML मिलेगा या नहीं। तो जब मैं आई थी, इट वाज नॉट नेसेसरी कि आपको फर्स्ट ईयर में ही पता हो या आप चूज़ कर रहे हो आपको AIML जाना है, बिग डेटा जाना है, तो आप यहाँ पर जब आओगे थर्ड ईयर में भी यू कैन चूज़, राइट। सो इट इज़ अप टू यू, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें चूज़ कर सकते हो, बट अगर आपने अभी AIML ले ही लिया है, तो एज़ पर माई फ्रेंड्स आई वुड से कि जब हमारा हुआ था, तो अभी वो थर्ड ईयर में भी आके दे आर एबल टू चेंज देयर स्पेशलाइजेशंस फ्रॉम व्हाट दे हैव चोजन एट द फर्स्ट ईयर, सो यू कैन डेफिनेटली चेंज एंड यू कैन गेट AIML एज पर एज हाउ मच आई नो। Okay, next question. What about the overall scholarship system? Like, I have a 90% scholarship. How does that work semester-wise? So, for getting more information on scholarship, I would recommend you to contact to admissions cell. But for maintaining the scholarship, सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, हर एक के एडमिशन लेटर में लिखा होता है, ठीक है। तो एक जो इन जनरल जितना मुझे पता है आपको बताती हूँ कि आपको 8+ CGPA मेंटेन करना होता है एवरी ईयर, ताकि यू कैन रिटेन योर स्कॉलरशिप्स। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि एटलीस्ट आपका 8+ CGPA हो। बट अगर आपका एडमिशन का ये स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया में कुछ अलग क्राइटेरिया लिखा है, तो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, वरना आपका स्कॉलरशिप चला जाएगा। तो ये सेमेस्टर वाइज रिटेन नहीं होता है, ईयर वाइज रिटेन होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप जब भी एडमिशन ले रहे हो कि आपको सब कुछ का इन्फॉर्मेशन हो, पहले से जानकर आए कि आपका क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको यू हैव टू मेक श्योर इन ऑर्डर टू मेंटेन योर स्कॉलरशिप। Okay, next question. Here is a worried one. Do they really cancel a scholarship if a CGPA fails below 9? Now, again, what I said in the previous question, आपका स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया होगा ही जो उसमें लिखा होगा। अगर आपका मानो फॉर एग्जांपल इफ़ योर क्राइटेरिया इज़ 8 CGPA एंड इफ़ यू डू नॉट मेंटेन, आपका उस साल का स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगेन आफ्टर दैट ईयर इफ़ यू आर एबल टू मेंटेन 8+ CGPA, you can again retain for next particular year. So you can retain or you cannot. So that is based on whatever the criteria is. तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, अगर आपका स्कॉलरशिप है आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप सब अपना स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया मेंटेन करके ही रखें।
Okay, another one. CSE core or versus CSE with specialization. Big debate. What's the deal and why do we chose the specialization in third year or fourth year? Okay, so as you are in like you will come in for first year, right? So I think आपको अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, और आपको श्योर होने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट? तो एट फर्स्ट व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन एक्सप्लोर each and every specialization. YouTube में there are tons of videos, you can watch them, you can give like you can make yourself clear आपको क्या चाहिए. और इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज मैं अलग स्पेशलाइजेशन लिया है. मैंने साइबर सिक्योरिटी लिया है, मेरे फ्रेंड ने क्लाउड कंप्यूटिंग लिया है, मेरे दूसरे फ्रेंड ने AIML लिया है. तो नाउ दीज स्पेशलाइजेशंस आर बेस्ड ऑन व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट. तो मैं आपको ये आइडिया या आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले YouTube में वीडियोस वगैरह देखें, आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है आप उसी में परस्यू करें, बिकॉज आगे जाके यू विल हैव टू मेक अ करियर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ओनली. सो इट्स बेटर टू बी क्लियर एंड डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट योर पैशन लाइज इन. Okay, a big one question regarding placement. How many companies visit SRMAP? How many CSE students got placed in 2024? What is the average package? सो बेसिकली बहुत सारे कंपनीज आते हैं. अभी हमारी भी प्लेसमेंट सेशन चल रही है, तो उसकी वजह से मैं आपको बोल सकती हूँ कि बहुत सारे कंपनीज आते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द एवरेज पैकेज एंड ऑल, मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है बिकॉज दिस इज़ अबाउट प्लेसमेंट एंड वो उनके डिपार्टमेंट को ही आइडिया होता है. बट ओवरऑल स्पीकिंग 7 to 8 LPA would be the average that I am assuming for 2024 batch. बट अभी हमारा जो ईयर चल रहा है उसमें तो आई थिंक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा पैकेज मिला है. So definitely you can crack a very good package if you have good skills. Next question is that what about the internship, especially since SRMAP is in rural areas? Is that a drawback for CSE student? So before answering to your question, I would like to say that I'm hoping that you might know that SRM University AP is situated at Amravati, which is the capital of Andhra Pradesh, which is also developing right now. It is in developing stage, right? So मेरे हिसाब से दैट इज़ नॉट अ फैक्टर कि आपका इंटर्नशिप नहीं लगेगा. सेकेंडली जैसे मैंने बोला यहाँ बहुत सारे कंपनीज आते हैं. अगर आपका CGPA अच्छा है और अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली स्किल्स, CGPA भी आपको मेंटेन करना है बिकॉज बहुत सारे कंपनीज के क्राइटेरिया होते हैं कि 8+ या 8.5+. तो इसको वजह से आपको CGPA भी मेंटेन करना है. बट CGPA मेंटेन करते करते यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव स्किल्स अप टू द मार्क. सो अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं और आपके CGPA अच्छे हैं, आपको इंटर्नशिप मिलेगा. सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट कि ये रूरल एरिया में है या अच्छे एरिया में है. इट डज नॉट मैटर. Next question, in which month semester holidays are given? Well, that's a very interesting question. So basically you will get your semester break or semester holidays on July or June or July for your even semesters and in December for your odd semesters. Okay, another question, should we bring our own mattress, bucket and mug for hostel? What about other hostel essential for girls? Yeah, so you will have to bring your own mattress and buckets and mug. And it is not important कि आप अपने घर से नहीं लेकर आओ. आप यहाँ पर आओ, यहाँ के लोकल मार्केट से भी आप ले सकते हो. मैंने भी इधर के लोकल मार्केट से ही लिया था बकेट वगैरह, मैट्रेस वगैरह. तो यू डोंट हैव टू कैरी अपने घर से. यू कैन जस्ट गो टू द मार्केट एंड टेक द एसेंशियल्स. एंड कमिंग टू अदर गर्ल्स एसेंशियल्स, इट्स वेरी सैड बट आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स होते हैं जैसे ब्लो ड्रायर्स वगैरह वो सब अलाउड नहीं है यहाँ पर. केटल्स वगैरह ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है. सो या. Okay, next, an interesting one. Which year you are in? So I am currently in my 4th year, stressed out for my placements. So yeah. Okay, a sweet one from in Rajasthan. I got a 50% scholarship, but I am confused whether to come all the way to Andhra Pradesh. Any words for them? So if you've gotten 50% scholarship, which means you are good at studies firstly. Secondly, SRMAP is very good campus. You will get a lot of opportunities. मैं अभी 4th year में हूँ तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत ही सारे कंपनीज आते हैं. अगर आपके स्किल्स वगैरह अच्छे हैं तो आपको बहुत इजी होगा प्लेस्ड होना. ऑल्सो ये थोड़ा आउटस्कर्ट एरिया में है तो ज़्यादा इन्वायरमेंट बेसिकली बहुत अच्छा है एंड इट्स वेरी पीसफुल, इट्स वेरी ग्रीन. जैसे आप वीडियोस में भी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है. और अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स अच्छे आपको मिल गए तो इट विल बी cherry on the top. So yeah, it is very good. SRMAP is good university.
And another question, someone is saying I got a 2476 rank in SRMG Phase 1 2025 and 90% scholarship. Took admission already. Did I make the right decision? What would you say? So, as many of you might know or might not know, I am an international student. तो मुझे ज़्यादा नेशनल्स के SRM JEE और JEE वगैरह के रैंक से जो स्कॉलरशिप मिलता है उसके बारे में तो ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है. बट जब आपने अब एडमिशन ले लिया है, देन आई वुड से दैट इट इज़ अ ग्रेट चॉइस and I hope that you make all these 4 years count and get placed at a very amazing company. Okay, another question. How much scholarship you got and which semester are you in now? So I got 85% scholarship, and coming to which semester I am in, currently I have my holidays, but now I'll go to 4th year, which is basically 7th semester. Okay, next question. I got a rank 5K rank and chose mechanicals with robotics. How are the faculty and studies for that branch? So as far as I know, I mean I'm not aware if robotics is at SRM University if has any specialization, but if you have got the faculties of very great, very helpful, and if you are someone who is very much interested in research and everything, because robotics, I'm just aligning that it kind of you are interested in research as well. So I think it is a very good choice for you because faculties are very helpful and whole administration are also very helpful in this case. And finally, the classic question, is SRM AP better than SRM KTR? So this is the most asked questions from so many fellow people like you. So first I would like to say that SRM KTR or SRM Chennai is the main campus. So it will at any time have an edge from SRM AP, SRM Ramapuram or any other SRM branch in India, right? So being a branch, I would not say that SRM AP is not good. सबके अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं. SRM चेन्नई इज़ वेरी ओवर क्राउडेड और SRM चेन्नई ऑब्वियसली मेन कैंपस है, सबको उसमें जाने का मन करता है और अभी अभी SRM AP बना है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा नहीं है. यहाँ पर बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है, फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं और प्लेसमेंट्स भी अभी अभी शुरू हुआ है, अभी बिल्ड हो रहा है यूनिवर्सिटी, बहुत कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं, तो अभी प्लेसमेंट्स भी शुरू होता है. एंड देन इफ़ यू हैव गुड एट स्किल्स एंड इफ़ यू हैव गुड CGPAs एंड एवरीथिंग यू विल डेफिनेटली गेट प्लेस. So I'd say कि SRM AP is a good campus. Okay, that was a fun session. If we missed your questions, drop it in the comment below and maybe we will do part 2. Thank you so much for your love and I hope that you keep all these questions coming. I would love to answer all of your questions. See you in the next video. Make sure that you like, share and subscribe to my channel and comment any other queries that you have and I'll make sure that I answer all of them. Bye bye. Have a good day.